welcome back. Yesterday we have done calculation of interest on drawings. So we have covered up to quarterly drawings, how to calculate interest on drawing if drawings are at regular intervals, that is beginning of quarter, middle of quarter and end of quarter. So one recapitulation please. Drawings हम दो तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज पीरियड मेथड और प्रोडक्ट मेथड. एवरेज पीरियड मेथड इज़ यूज्ड for equal intervals and equal amount. Product method is used unequal intervals or unequal amount. Formula जो हमने yesterday we have discussed, formula क्या है? Total drawings into rate into average period. ठीक है. If you forget average period, we can calculate with the help of this formula. For calculating average period, formula is month left after first drawings, month left after last drawings upon 2. So we have discussed interest on drawing with the help of this table. ठीक है. Drawings and average period for different cases of drawings. So for beginning of every month, ये रेगुलर पीरियड के लिए हम कर रहे हैं डिफरेंट केसेस. रेगुलर पीरियड मीन्स इक्वल अमाउंट, इक्वल इंटरवल्स. If you withdraw at the beginning of every month, then average period will be 6.5. Middle of every month 6. End of every month 5.5. Beginning of every quarter 7.5 month. Middle of every quarter 6 month. End of every quarter 4.5 month. So ये वाले रूल्स हमने आज डिस्कस करने हैं. If you withdraw for 6 months, if a partner withdraws from business for 6 months, so beginning of every month for 6 months के लिए average period we will consider 3.5 month. Middle of every month for 6 months, average period we will take as, we will put in the formula 3 months, 3/12. So end of every month for 6 months, average period will be taken as 2.5 months. Very important rule when date of drawings is not given. Clear? So whenever it is given, partners withdraw rupees 10,000 during the year, but we are not given when date of the drawings. So students, इस केस में आपने एवरेज पीरियड 6 months लेना है when date of drawings is not given. So again next rule, when word per annum is not given, like 10% per annum, 12% per annum, अगर पर एनम वर्ड यूज़ नहीं किया गया स्टेटमेंट में, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने उस केस में आप लोगों ने मंथ को इग्नोर करना है. देन सिंपली फार्मूला विल बी ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू हम टाइम पीरियड नहीं करेंगे. फॉर अनइक्वल अमाउंट एंड अनइक्वल इंटरवल प्रोडक्ट मेथड इज़ यूज्ड. फार्मूला क्या होगा? प्रोडक्ट इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड विल बी 1 month. दैट वी विल डिस्कस इन टूडेज लेक्चर. So these examples has been discussed yesterday. If there are monthly drawings, quarterly drawings. So today we will start with the questions when drawings are made only for last 6 months. So as you can see in the example, 3 partners है, equal ratio है. A drew 4,000 in the beginning of every month for 6 months. सो जैसे मैंने आपको बताया ईयरली ड्राइंग्स में इंटू 12 करना है. ठीक है. बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो फिर इंटू 12 करके टोटल ड्राइंग्स आएंगी. क्वार्टरली के केस में हमने इंटू 4 करना है. क्लियर? सो और 6 मंथ्स के लिए अगर आप पैसा निकाल रहे हो बिजनेस में से, तो जितना आप अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो इंटू 6 करोगे. अब ए कितना विड्रॉ कर रहा है? 4,000. 4,000 कितनी देर के लिए बिजनेस से विड्रॉ करता है? 6 मंथ्स के लिए. ठीक है. तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएंगी? 4,000 इंटू 6. सो इट विल बिकम 24,000. सो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months, एवरेज पीरियड विल बी 3.5 month. 3.5 को आप कैसे लिखोगे? 3.5/12 इंटू रेट ऑफ ड्राइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट है 5%. सो यू विल गेट द आंसर. इट इज़ वेरी सिंपल. सो सब जगह देखो एक ही फार्मूला चल रहा है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड. ठीक है. सो फॉर 6 months के लिए एवरेज पीरियड होता है 3.5. बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months,
और मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स का रेट होता है हमारे पास 3 मंथ्स, एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स का रेट होता है हमारे पास 2.5 मंथ्स. सो सेम एग्जाम्पल अगेन, बी ने जो विड्रॉ किया, बी पार्टनर ने, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ. एंड के लिए टाइम पीरियड आप क्या लोगे, 2.5 मंथ. तो अगेन 4,000 उसने 6 मंथ्स के लिए विड्रॉ किया. ड्राइंग कितनी हो जाएंगी, 24,000. 24,000 इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड विल बी टेकन एज 2.5 month and it is written as 2.5 upon 12. Same way, C withdrew 4,000 in the middle of every month. Middle of every month का एवरेज पीरियड क्लास क्या होगा, 3 months. सो 4,000 इंटू 6 टोटल उसने विड्रॉ किया. सी ने बिजनेस में से 24,000 रेट इंटू 3/12. सो तीनों केसेस में बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स, एवरेज पीरियड एट 3.5, एंड के लिए 2.5, मिडल के लिए 3.5. ठीक है. अगेन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं आपसे ऑलरेडी रूल डिस्कस कर चुकी हूँ. ठीक है. व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, then we will take average period for 6 months. Clear? So we will cover with the help of example. So interest on drawings निकालना, rate is given. ठीक है. If drawings during the year, see drawings during the year but no date is given. So drawings during the year, total drawings की amount हमें दे दी 30,000 into rate कितना है, 10%. Average period will be taken as 6 months. Clear? So you will get the answer. सेम वे, ही विड्रॉज 2,500 पर मंथ. पर मंथ है तो एनुअली पूरे साल में पैसा कितना निकालेगा, 2,500 इंटू 12. ठीक है. 2,500 इंटू 12 जब आप करते हो तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएंगी, 30,000 इंटू रेट कितना है, 10%. अब डेट ऑफ ड्राइंग्स देखो कहीं दे रखी है, इन दोनों केसेस में डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, देन वी विल टेक एवरेज पीरियड एज 6 मंथ एंड योर आंसर विल बी 1,500. सो क्लियर है, सिंपल है बिल्कुल. सो लास्ट मेथड दैट वी विल डिस्कस टुडे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय प्रोडक्ट मेथड. सिंपल मेथड मैंने यूज़ ही नहीं किया है इस प्रेजेंटेशन में आपके इस लेक्चर में, क्योंकि इट इज़ टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम. इस मेथड को मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगी, ना मैं डिस्कस करूँगी. व्हेन एवर अनइक्वल अमाउंट एंड अनइक्वल date, use product method only. This method takes very much this method is very time consuming, so go for product method only. ठीक है. so you can see in partnership में agreement के according rate of drawings कितना है, 15%. during the year ended partner withdrew as follows. देखो बच्चे, इस सम की पहचान क्या है, हमें डेट दे रखी है. 1 मई को अमाउंट कितनी निकाली, 2,000. 1 अगस्त को हमने अमाउंट कितनी निकाली, 5,000. 30 सितंबर को आई एम विड्रॉइंग फ्रॉम द बिजनेस 2,000. 31 जनवरी 6,000. 31 मार्च 2,000. देखो किसी भी डेट में कोई सिमेट्री नहीं है. कभी तो वो फर्स्ट डेट को विड्रॉ कर रहा है, कभी किसी इक्वल, कोई इंटरवल इक्वल नहीं है. मई से अगस्त में टाइम पीरियड, अगस्त से सितंबर में अगेन टाइम पीरियड देखो आप, यहाँ 2 मंथ्स का गैप है. यहाँ पर हमारा मई जून जुलाई अगस्त 4 मंथ्स का गैप है. मई जून जुलाई 3 मंथ्स का गैप है. अगस्त से सितंबर में 2 मंथ्स का गैप है. सितंबर से जनवरी में 4 मंथ्स का गैप है. सो यू कैन सी यहाँ पर अगेन 2 मंथ्स का गैप है, फेब और मार्च. तो कोई सिमेट्री नहीं है, ना तो इक्वल अमाउंट्स हम विड्रॉ कर रहे हैं बिजनेस में से, अमाउंट्स भी सेम नहीं है, और जो टाइम इंटरवल है दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट. सो सिंपल पहचान है, यू कैन रिकोगनाइज व्हेन अनइक्वल अमाउंट एंड अनइक्वल ड्राइंग्स. सो हाउ टू कैलकुलेट इन दैट केस. सो इस केस में बच्चे आपने क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक अ टेबल. 4 कॉलम्स विल बी देयर. इन फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट 2 कॉलम तो आप बिल्कुल स्टेटमेंट से ही उतार लोगे. ठीक है. डेट और अमाउंट का कॉलम, फर्स्ट 2 कॉलम आप डेट स्टेटमेंट में से यूज़ करोगे. 1 कॉलम फॉर डेट एंड अनदर कॉलम फॉर अमाउंट. अब उसके बाद बच्चे हमने इसमें क्या करना होता है, ये क्लोजिंग डेट सबको पता है, क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होता है 31 मार्च को. सो आपने जिस डेट को पैसा निकाला, लिसन केयरफुली एवरीवन, इट विल टेक 1 मिनट बट यू विल गेट इट डेफिनेटली. इट इज़ वेरी सिंपल. 1 मई को मैं अगर विड्रॉ करती हूँ
तो 31 मार्च तक मैंने कितने मंथ्स के लिए पैसा निकाला, ठीक है। मई से लेके मार्च तक जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका मतलब आपने 11 मंथ्स के लिए बिजनेस में से पैसा विड्रॉ किया। मई को निकाला, 31 मार्च तक कितनी देर आपने फर्म का पैसा यूज़ किया वो आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। ऑब्वियस है अप्रैल का मंथ मैंने पैसा नहीं निकाला, मई से लेकर 31 मार्च तक मैंने पैसा निकाला, तो नंबर ऑफ मंथ्स टिल 31 मार्च कितने हो जाएंगे, 11। नेक्स्ट सेकंड ड्राइंग्स जो है 1 अगस्त है, अगस्त से लेकर 31 मार्च तक कितनी देर आपने बिजनेस के ये 5000 यूज़ किए, उसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो 8 मंथ्स आपका अमाउंट आ जाए, 8 मंथ्स आपका टाइम पीरियड आ जाएगा इसमें। सेम वे सितंबर में आपने 2000 निकाले, 30 सितंबर, बहुत ध्यान दिया करो स्टूडेंट्स, फर्स्ट है कि 30th है, कुछ बच्चे सितंबर को भी बीच में काउंट कर जाते हैं। अब देखो 30th सितंबर है तो सितंबर का मंथ नहीं काउंट करना, नेचुरली ये अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ्स, सो नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च यू विल टेक इट एज 6 मंथ्स। क्लियर। अगेन 31 जनवरी, तो 31 जनवरी को आप जनवरी तो छोड़ दोगे, ठीक है। जनवरी के बाद क्या बचा, फेब और मार्च, तो 2 मंथ्स मैंने 6000 यूज़ किए, नंबर ऑफ मंथ्स। अब ये देखो लास्ट में यहाँ पर भी बच्चे बहुत गड़बड़ करते हो आप लोग, 31 मार्च को क्लोजिंग डेट को पैसा निकाल रही हूँ, तो कितनी देर मैंने फर्म का पैसा यूज़ किया, क्लोजिंग डेट में 0 मंथ्स, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ बच्चे इसको 1 लिख देते हैं, ठीक है। 1 मार्च और 31 मार्च में डिफरेंस समझ रहे हो, जहाँ फर्स्ट होगा वहाँ तो पूरा मंथ वो भी कैलकुलेट होगा, जैसे मई को भी लेना है टिल मार्च, अगस्त को भी लेना टिल मार्च, बट 30 सितंबर है, 30 सितंबर को छोड़ दो, अक्टूबर से मार्च, जनवरी 31 है, जनवरी को छोड़ो, फेब और मार्च 2 मंथ्स, क्लियर। और मार्च लास्ट डेट को ही विड्रॉ किया तो नंबर ऑफ मंथ्स विल बी 0। अब इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दो प्रोडक्ट, ठीक है। अमाउंट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स कर दो, 2000 इंटू 11 22,000, 5000 इंटू 8 40,000, 2000 इंटू 6 12,000, 6000 इंटू 2 12,000 एंड हेयर द प्रोडक्ट विल बी 0। अब उस प्रोडक्ट का आप टोटल कर लो, क्लियर। सो उस प्रोडक्ट का जब आप टोटल करते हो तो टोटल विल बिकम 86,000। सो फॉर्मूला प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड विल बी टेकन एज 1/12। सी मैं आपसे दोबारा शेयर करती हूँ, मैंने फार्मूला किया था यहाँ पर मेरे नोट्स में मैंने आपको बताया था। देखो फार्मूला क्या है प्रोडक्ट मेथड के लिए, प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। सेम फार्मूला वी आर यूजिंग हियर, प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू टाइम, ठीक है। टाइम में हमने 1 मंथ लेना है। प्रोडक्ट का टोटल कितना आया 86,000, रेट कितना है 15%, और एवरेज पीरियड विल बी टेकन एज 1/12 एंड यू विल गेट आंसर ₹1075। क्लियर। So this is all about how to calculate interest on drawings. Each and every example I have covered, each and every case I have tried to cover. So hope so इसमें अब आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। Even then if there is any query you can ask, ठीक है, we can solve the same. So इसी से रिलेटेड मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आपकी असाइनमेंट बनाई है, we will discuss today. Thank you students, thank you so much.